Well, the rescue operation in Uttarkashi is over, but the politics on it continues. India moved mountain to rescue 41 trapped workers, but there is no end to the political reactions and the blame game. Congress continues to take jibe at Prime Minister over Uttarkashi tunnel rescue 2 days after it posted an illustration of Prime Minister Modi standing at the mouth of the Uttarkashi tunnel, accompanied by a caption saying, "Put some cameras so that Sahib visits the tunnel." Congress has now renewed Panoti attack on the Prime Minister. Congress leader Supriya Shrinate took to social media to say that with the fear of being a Panoti, Prime Minister did not visit the tunnel. So it's a classic case of doomed if you do and doomed if you don't. Had the Prime Minister gone to the tunnel, he would have been accused of taking credit for the rescue. And when he did not go, he's being branded a Panoti or a harbinger of bad luck once again. But as the Congress steps up attack on the Prime Minister and accuses Modi government of delayed action, it should listen to its own Chief Minister of Himachal Pradesh, Sukhvinder Singh Sukkhu, who when asked about Congress's charge of delay in rescue, responds by saying there cannot be a time frame while rescuing tunnel workers, as ensuring safety of the workers is paramount. वहाँ की ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है, हार्ड स्टेटा होता है, सॉफ्ट स्टेटा होता है, कई बार टर्निंग में सॉफ्ट स्टेटा निकल जाता है जिससे नुकसान होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पहाड़ों में टर्निंग ही बेस्ट ऑप्शंस है और उस टर्निंग पर ही हमें आगे जाना चाहिए। उत्तराखंड टनल पॉलिटिक्स पे क्या कहना चाहेंगे सर? सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहाँ पर क्यों मौजूद नहीं थे और डिले भी हुआ था सर। कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए कि आखिर क्या वजह रही कि इतने दिन लग गए मजदूरों को निकालने के लिए। देखिए, जब कोई टनल में फंसता है उसका स्टेटा बड़ा कई जगह सॉफ्ट होता है, कई जगह हार्ड होता है। टनल में फंसे मजदूरों को कोई टाइम फ्रेम नहीं होता जिस तरह, इसलिए वो जब निकाले गए हैं उसी में ही हमारी सफलता है। Now the BJP has also hit back strongly at the Congress party, hailing the leadership of Prime Minister Narendra Modi as one that lifts the spirit of a billion hearts. BJP's Amit Malviya posted a video showing how Prime Minister Modi applauded the bravery of Uttarkashi tunnel workers, motivated Team India after their World Cup loss, provided solace to women hockey team and stood with our scientists after the Chandrayaan-2 setback. देखिए, कुछ लोगों का काम केवल राजनीति करना और नकारात्मकता, नेगेटिविटी फैलाना है। उनको वो करने दीजिए। हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था देकर गए थे, ये घोटाले देकर गए थे। हमने कांग्रेस के घोटालों से भी मुक्ति दिलाई, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। Well, in order to corner Congress, BJP has also reminded of the aftermath of Bhopal gas tragedy, trying to make a point that while BJP government did all it could to rescue 41 trapped workers, the Congress government in MP in 1984 actually escorted Union Carbide chairperson Warren Anderson out of Bhopal. Remember, it was gas leak at one of the plants of Union Carbide that killed over 3,800 people as per official records. BJP has shared a video showing how then Congress government in MP allegedly facilitated the escape of Anderson to America. Let's open this up and go across to our guests. We're joined by Binay Singh, political analyst. We also have Ajay Verma, leader of the Congress. Good morning to both of you. Mr. Verma, I'd like you to respond first to the counter that has come in from the BJP, the video posted of Anderson and the allegation that this is how the Congress party worked for the victims of Bhopal gas tragedy by safely escorting Anderson back to America. देखिए, गुड मॉर्निंग आपके सारे दर्शकों को और आपको, और बाबा बौखनाथ की जय, बाबा केदारनाथ की जय और चारों धाम की जय। देखिए, ये जो ये प्रचार जीबी, फोटो जीबी और इवेंट जीबी लोग हैं, और सरकार का काम केवल ये है कि अगर सरकार के साहब को जाना था तो वहां कैमरे नहीं थे, फोटोग्राफर नहीं थे और इवेंट का सिस्टम नहीं था। चूंकि बाबा बौखनाथ का छेड़छाड़ हुई थी तो परेशान थे, इसलिए साहब गए नहीं। तो सारे सकुशल आगे लोग कह रहे हैं, पूरे देश में चर्चा, ये ट्रेंड हो रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर साहब ही, अगर आप लोग या देश के लोग या मित्र मीडिया ये कहता है कि साहब ने बचा दिया, बीजेपी के काम थे, तो मेरे ख्याल से टनल में तो ना धामी जी घुसे थे अंदर, ना मोदी जी थे, ना भाजपा का कोई प्रवक्ता था। हमारा सलाम है, हमारा नमस्कार है, हमारा धन्यवाद है उन मजदूरों को,
उस रेड स्नेटर्स को जो खोद रहे थे, उन टीम को जो बाहर से आई थी, जो काम कर रहे थे वहां ऑफिसर्स, जो सरकार के लोग काम कर रहे थे, उनको सलाम था, उनको धन्यवाद है कि उनकी वजह से 41 लोगों की जिंदगी बची, देश के लोगों की जिंदगी बची और देश का मान बढ़ा। अब आप आइए कि आज जितने भी चैनल्स हैं, द टेलीग्राम, जॉर्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, जब ये साहब के खिलाफ और सरकार के खिलाफ आलोचना निकालते हैं तो विदेशी चैनल हो जाते हैं, ये बिके हुए चैनल हो जाते हैं। अजय वर्मा जी, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि वहाँ कैमरा नहीं था, आप कह रहे हैं कि वहाँ कैमरा नहीं था इसीलिए साहब वहां नहीं गए। अगर साहब को जाना होता तो कैमरा अरेंज करने में कितना वक्त लगता है? दूसरी बात, ये किसी ने नहीं कहा कि वीके सिंह या पुष्कर सिंह धामी या नरेंद्र मोदी वहां पर बचा रहे थे वर्कर्स को, या वो खुदाई वहां पर कर रहे थे, लेकिन सरकार के नुमाइंदे होने के नाते वहां पर मौजूद रहना, वहां वर्कर्स से बात करना, रेस्क्यू टीम से बात करना, उनका उत्साह बढ़ाना, उनका मनोबल बढ़ाना, इसमें क्या गलत हो गया? कोई गलत नहीं हुआ। मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, फाइनली 10 सेकंड और बताना चाह रहा हूं, फिर आप इनके व्यूज लीजिए कि जब पुलवामा में अटैक हुआ था और पुलवामा में कानवाई की इजाजत किसने दी थी, एयर फ्लाइंग क्यों नहीं दी थी, तब कहां थे? अभी बहुत बड़ा रेल का हादसा हुआ था एक हिंदुस्तान में, तब कहां थे? अगर ऐसा ही था तो हम एक काम करते हैं, हिंदुस्तान के नहीं, ये तो वो वाली बात हो गई ना अजय वर्मा जी की, चित भी मेरी पट भी मेरी, भूखनाथ को हिंदुस्तान के चित भी मेरी पट भी मेरी आप नहीं कर सकते विनय सिंह। अगर प्रधानमंत्री वहां जाते तब भी ये आरोप लगता है कि देखिए वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और प्रधानमंत्री चले गए क्रेडिट लेने, लाइमलाइट लेने, नहीं गए हैं, तब सवाल उठाया जा रहा है कि वो कहां थे आखिर। लेट विनय सिंह रिस्पॉन्ड नाउ। अजय वर्मा जी प्लीज। कि अगर बाबा, ओके अजय वर्मा जी, लेट हिम रिस्पॉन्ड, आई विल कम बैक टू यू। जी विनय सिंह। Yeah, look, Gali politics was a feature of, Congress party, but it was a temporary feature. It was occasional. But it seems it has become a permanent feature now. Each and every day, in each and every press conference, each and every bite, in each and every TV interviews, this Gali politics is there. But leave that apart. Let's talk about how PM Modi works. So PM Modi leadership has been marked by moments of both success and resilience and challenges. And each has played a crucial role in shaping his image. And the notable aspect I'll say that is his approach, his engagement with defense personnel, sportsmen, ISRO scientists, recently with the laborers. Whether the nation celebrates a victory or a setback, the Prime Minister's willingness to meet or call these individuals reflect a leader invested in national spirit. Live what they are saying. And I am sure that you will also agree that such interactions not only acknowledge their efforts, but also boost the morale of these key contributors to the country's success and resilience. So this, if you want to know what happened and how the laborers feel, you go and talk to the laborers. You talk to the sportsmen, you talk to the ISRO scientists. They all were saying that their morale was boosted. But the morale of the Congress party is down. And I think they need a psychiatric treatment. If Gali becomes a permanent feature of your personality, that's bad. That's not what our Indian society stands for. We never resort to Gali politics, and that also too in public life. Okay, Ajay Verma ji. जी देखिए मैडम, अगर भगवान, देखिए सब धर्म के लोग मजदूरों में थे। भारत का संविधान द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ वॉइस देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको काम करने का अधिकार और समानता का अधिकार देता है। सारे धर्म के धर्माचार्य और सारे लोग 140 करोड़ लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रे कर रहे थे अल्लाह से, भगवान से, जीजू से और गुरुद्वारे से और मंदिरों से। और अगर भगवान से भी बड़े नरेंद्र मोदी और इनके बीजेपी के लोग हो गए और बाबा बौखनाथ से और केदारनाथ से भी बड़े हो गए हैं, तो हम आज से बाबा नरेंद्र मोदी कह के इनको ही भगवान माने लेते हैं और हिंदुस्तान में सारे मंदिर मोदी जी के बनवाए देते और बीजेपी के बनवाए देते। और योगी जी तो हमारे हैं ही बाबा, हम धामी जी को भी बाबा कहने लगते हैं। अगर आप लोग कहते हैं कि ये भगवान से भी ऊंचे हो गए हैं तो हम इन्हें भगवान माने लेते हैं। अरे ऐसा कौन कह रहा है? और फिर आगे जितनी ऐसा कौन कह रहा है कि भगवान जो, आप कहां से कहां ले जा रहे हैं पूरे मुद्दे को? कहां से कहां आप मुद्दे को ले जा रहे हैं अजय वर्मा जी?
बीजेपी के सारे लोग कह रहे हैं कि हम भगवान से बड़े हैं, ये नरेंद्र मोदी ने काम करा है, ये बीजेपी ने काम करा है, ये योगी धामी। चलिए बीजेपी की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। विनय सिंह जी के बारे में चलिए बीजेपी की प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। अजय वर्मा जी बीजेपी की प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। जस्ट लाइक मुखोटा कंपनी ऑफ द बीजेपी। कल मेरा भी तेलंगाना में प्रोग्राम था, मैं भी कल नहीं गया, इसलिए एक एंजाइटी होते थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। कल बहुत ही एंजाइटी में हम लोग घंटा पार किया, दिन पार किया। लेकिन राहुल जी, प्रियंका जी सबने डांस कर रहा था तेलंगाना में, तो इतना इनसेंसिटिव लीडरशिप देश को कभी नहीं देखा। हमें प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता रहा। प्रधानमंत्री जी बकायदा सुबह शाम मॉनिटरिंग करते थे, उनकी एक टीम वहां पर मौजूद थी। कोई हमको दिक्कत हो तो हम उनके साथ बैठकर उसका हल निकालते थे। देखिए, कुछ लोगों का काम केवल राजनीति करना और नकारात्मकता, नेगेटिविटी फैलाना है, उनको वो करने दीजिए। हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था देकर गए थे, ये घोटाले देकर गए थे। हमने कांग्रेस के घोटालों से भी मुक्ति दिलाई, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। अजय वर्मा जी, नाउ रिस्पॉन्ड टू दिस। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कहाँ थे? अगर आप कह रहे हैं कि कैमरा लगा देते तो साहेब पहुंच जाते, तो क्या उसके बाद ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पहुंचते कि साहेब पहुंच गए, भाई हमको भी पहुंचना है वहां पर? नहीं, देखिए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं है। सरकार राहुल गांधी प्रियंका गांधी की नहीं है। वी आर द सिटीजन ऑफ द इंडिया। हमारी उत्तराखंड में सरकार नहीं है। जिम्मेदारी सरकार की होती है जो जनता चुनती है, और सरकार सबकी होती है। उसके बाद जब बीजेपी रूल स्टेट में पहुंच जाते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तब भी आपको ये कहना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो तो वहां के सिटीजन है। ठीक है, ऑल राइट। अजय वर्मा एंड विनय सिंह. Ajay Verma and Binay Singh, that's all the time I have. No, that's all the time I have. Unfortunately, Mr. Verma, I will not be able to give you more time. Thank you very much for joining us on the broadcast with your views.